इजी होता है किसी के ऊपर कमेंट करना, किसी की ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, या कोई किसी पर्टिकुलर तरीके से लग रहा है जो हमें अजीब लगता है, किसी के ऊपर हम कमेंट कर देते हैं, मजाक उड़ा रहे लेते हैं, हंस लेते हैं, एंड वी जस्ट जस्ट डू इट फॉर फन। इनफैक्ट हो सकता है हम ये बोल भी दें, "यार, मजाक कर रहे थे, सीरियसली मत लियो।" सो इट्स इजी, इट्स फॉर फन एंड इट इज बिटवीन फ्रेंड्स। सो बहुत बड़ी चीज नहीं लगती है, आई एम श्योर। बट अगर वही मजाक आपके ऊपर हो, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर लिटरली एबल टू टेक इट? फ्यू ऑफ यू मे टेक इट बिकॉज आपको फर्क नहीं पड़ता है, बट देयर आर फ्यू पीपल हु मे नॉट बी एबल टू टेक इट, राइट? उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा, उनको हो सकता है आपका मजाक नहीं पसंद आए। सो मेरा मुद्दा क्या है आज का? बेसिकली कि कभी कभी जो चीजें हम बहुत लाइटर मोड में बोल देते हैं, वो उतनी लाइटर मोड में दूसरा इंसान नहीं ले सकता है। In fact, I remember in my school days, there were few things which, I was not aware regarding beauty, the way you have to dress up or the way you have to look. I was not very much aware because I came from a family where, the education was given more importance. Maybe, I never had an environment where grooming or, trying to look beautiful, the typical standards of beautiful was not emphasized on. So मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, और मुझे आज की डेट तक याद है कि few of my classmates literally used to talk about me behind my back for sure, but yes, I heard them one or two times. So मुझे बहुत बुरा लगा था, believe me, मुझे बहुत बुरा लगा था, but I never said anything because I was a very introvert person. I was very conscious about my looks. I was very underconfident child, and I ignored it. That time I kept on ignoring because um, that was the best solution I found. So I ignored. And I always kept on focusing on my studies. I never, replied back to anybody on this. I just kept on ignoring because that was the only solution I had. But later on, by God's grace, I landed up in another school which was really very good. I had very supportive friends. Till date, we talk to each other, and I got friends in my college also who were very supportive, and you know, uh, they always stood by me and they accepted me the way I was that time, right? So I was lucky enough, right? But I believe everybody is not. एंड व्हेन आई से एवरीबॉडी इज नॉट, इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो आप कमेंट्स करते हो, आज की डेट में हम सोशल मीडिया पे इसे ट्रोलिंग बोलते हैं, राइट? इट्स नॉट वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी टू टेक, it in a manner which does not disturb their mental peace. In fact, why I started talking about this particular topic is because I have been coming across a news article which talks about a UP board topper girl, right? Where it was such a happy moment for her. She came in front of media because she has achieved something. She was a girl who has got the highest marks, highest grade among 55 lakh students, right? So I'm sure a lot of people are not aware about this, but most of us are aware that she was trolled because of her facial hair. हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली कुछ सेक्शंस की प्रॉब्लम ये होती है, अगर उनको एक ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखा दी जाए ना, और उसमें एक छोटा-सा ब्लैक स्पॉट कहीं होगा, सो बिलीव मी, वो पूरी पेंटिंग को छोड़ के उस ब्लैक स्पॉट पे फोकस करेंगे जो उनके अकॉर्डिंग वहाँ नहीं होना चाहिए था। बिकॉज़ हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। हमको लगता है दिस इज़ व्हाट द स्टैंडर्ड इज़, एंड इफ समबडी कैन नॉट फिट इन द स्टैंडर्ड, they are to be commented on or made fun of. So this is such a sad state, and I literally couldn't stop myself and come here and talk about it. It is such a sad state कि there is a family, there is a girl who is stopped. It's such a nice moment. People need to celebrate, and what have we, made this moment for her. I'm sure वो आगे अपनी लाइफ को अपना टॉप किया वो मार्क्स याद नहीं रखेगी, वो ये याद रखेगी। एंड यू मे ऑलवेज से कि नहीं, आई एम रॉन्ग,
she says कि she is very motivated, she is going to focus on her, becoming an engineer. I'm 200% sure she is going to focus and prove herself even more now, because this is something which I have gone through, so I can literally empathize with her. प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई बोले ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिलीव मी फ़र्क सबको पड़ता है। इट्स जस्ट दैट फ्यू पीपल डोंट वांट टू शो दैट हर्ट फीलिंग, बिकॉज़ उनको दूसरों के सामने वीक नहीं होना होता है। बट ये जो छोटे-छोटे कमेंट्स होते हैं, ट्रोलिंग होती है, इनफैक्ट पहले टाइम में भी होती थी, पहले टाइम में इतना सोशल मीडिया नहीं था, सो अगर मुझे किसी ने कमेंट किया, मैंने सुन लिया और 4 लोगों ने सुन लिया, वो बात वहीं खत्म हो गई। But आज के time में when we have this social media where if somebody one person comments it, people just keep on making a trail out of it, and the whole world knows it. So it is not confined now. सोशल मीडिया के बेनिफिट्स बहुत हैं, उसके साथ उसके नेगेटिव्स भी हैं, एंड दिस इज व्हाट द नेगेटिव इज कि now she is become famous not for getting highest marks among 55 lakh students, but more of her you know facial hair, because people feel it's not normal. It is normal, by the way, we are not going to go there, but the problem is this she is not going to forget. And why do I say this? Only because बचपन में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम साइकोलॉजी के टर्म्स में क्रिटिकल इंसिडेंट्स बोलते हैं, जो इंसान अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता। एंड व्हेन आई से भूल नहीं सकता, बिकॉज आई एम ऑफ दिस एज नाउ, आई हैव अ किड, राइट? बट उसकी उम्र में जो कमेंट्स मैंने सुने थे, वो बिलीव मी मुझे आज की डेट तक याद है। इन स्पाइट आई टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, आई टॉक अबाउट मोटिवेशन, आई टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट टिल डेट those words and the way I was feeling that particular moment, till date I remember, right? And it is not abnormal, it is normal, because जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, उस टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपकी बैक ऑफ द माइंड रजिस्टर हो जाता है, और वो बिलीव मी पूरी लाइफ आपके साथ होता है, राइट? नो डाउट आप उसको कॉन्शियसली याद नहीं करते, बट अगर आप ऐसी चीजें अपने अराउंड देखते हो, तो वो आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो वापस आ जाता है। और वो एक्सपीरियंस जब वापस आता है ना, आप उसी मोड में चले जाते हो, वही फीलिंग आती है ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। And I had that feeling during my school days. So I can totally empathize with such an incident. But I'm sure most, maybe few of you couldn't. Because नहीं हुआ, जिसके साथ नहीं हुआ वो नहीं उतनी अच्छे से फील कर सकता है। So this is something which is, something which I obviously nobody appreciates. But आजकल सोशल मीडिया के टाइम में हमको ऐसा लगता है, सिटिंग बिहाइंड दिस स्क्रीन, and when nobody knows you, you can just comment anything and everything, right? Okay, that's your choice, it's absolutely okay, but the fact is, um, आजकल के टाइम में आई फील हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट all these things have been added as curriculum in schools. मेरे बच्चे के स्कूल में इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि all these things have been included in the curriculum. बट एक करिकुलम में इंक्लूड करने से ही चेंजेस नहीं आते, ये मेरा मानना है। बिकॉज़ आई फील जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता है, तब तक कुछ भी पढ़ें हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। सो एज़ अ पेरेंट आई फील अगर मेरे बच्चे को एम्पैथी पढ़ाई जाती है, क्या मैं उसका लाइव एग्ज़ाम्पल उसको उसकी डेली लाइफ में देती हूँ या नहीं? अगर देती हूँ तो बिलीव मी all this theoretical knowledge is going to be inculcated in him in a practical form. और अगर वो बचपन से एम्पैथी टाइप के एम्पैथी जैसे कॉन्सेप्ट को समझेगा, और प्रैक्टिस करेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस करेगा, तो धीरे-धीरे जब वो बड़ा होगा, इसकी मतलब बड़े होने के बाद he can have more sensitivity towards all these issues, and he can empathize with people more, he can be a better human being and have better relations around him. So it's good that these has been included, right? But the fact is we need to change our mindset. Only then this is practically possible and can be implemented in the society for sure. So ट्रोल करना, किसी का मजाक उड़ाना,
बहुत ईज़ी है, बट इसका ऑपोज़िट, राइट, रिस्पेक्ट करना, एम्पैथाइज़ करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है बिकॉज़ हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड आजकल की डेट में इफ यू टेक अ थॉट ओवर इट कि आजकल ये ट्रोलिंग क्यों होती है? Because we are so much invested in our social media platforms. When we see other people, we think that their lives are better, right? कहीं ना कहीं हमारे अंदर हो सकता है कुछ गुस्सा हो, कोई जेलसी हो, कुछ अपने इनसिक्योरिटीज हो, और ये जो सारी चीजें होती है ना, ये किसी ना किसी फॉर्म में निकलती है। एंड बिलीव यू मी ऑन दिस कि अगर कोई इंसान बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, कुछ कर रहा है, राइट, उसके पास इस सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा। बट अगर कोई इंसान सिर्फ दूसरों की लाइफ को देख के अपनी लाइफ कंपेयर करता है, और जेलसी इंक्लूड करता है, और गुस्सा इंक्लूड करता है अपनी डेली लाइफ में, वहीं से ये बाय प्रोडक्ट आते हैं। बिकॉज जब हम किसी को ट्रॉल करते हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं विच इज़ नॉट गुड, राइट, एंड विच डजंट लुक गुड, बट वी फील हैप्पी अबाउट दैट कि मैंने उसे ये कमेंट कर दिया, मैंने उसे इस तरह से ट्रोल कर दिया, वी डिराइव सम सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट। बिकॉज या तो हमारी लाइफ में और कोई प्लेजर नहीं है, सो आप दूसरों को हर्ट करके ही प्लेजर डिराइव कर रहे हो। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। सो वी नीड टू गेट a positive frame of mind. We need to have empathy in our life. We need to do more productive and positive work rather than peeping into others' life and giving such negative comments. In fact, if you see, all these trollers or people who just comment anything and everything would not even have a pic on their social media platforms because they want to hide behind and then they want to say something. Or apart from these trollers also, if you see, there are a lot of people who don't put their natural picture on social media platforms. और इसका रीजन सिर्फ यही है कि आज के टाइम में वी आर लिटरली अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड। इन फैक्ट आई हैव हर्ड फ्यू पीपल सेइंग कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन जज मी द वे यू वांट टू। बट द फैक्ट इज फर्क पड़ता है। उनके भी दिमाग में ये कहीं है कि आई विल बी जज, राइट। सिर्फ बोलने से कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता। फर्क सबको पड़ता है, बुरा सबको लगता है, हर्ट सब होते हैं। बट कुछ लोग जो ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं, उनके ये फेशियल एक्सप्रेशंस पे, उनके बिहेवियर पे दिख जाता है कि वो हर्ट है। और कुछ लोग जो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस में, उनके बिहेवियर में नहीं दिखेगा। बट बिलीव मी, कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट ज़रूर होगा, राइट। और एक बचपन में अगर एक बच्चे को एक अच्छा सा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा वेयर ही कैन जस्ट ग्रूम हिमसेल्फ, तो उसके अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ही डजंट फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, उसका सेल्फ आइडल सेल्फ लो हो जाता है। सो एक बच्चे को एक अच्छी सी इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट होके बड़ा हो। और अगर ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर पीपल क्रिटिसाइज, पीपल कमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट अगर बच्चे को मिलेगा, बिलीव मी, बचपन से उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर बचपन से उसका कॉन्फिडेंस और उसका सेल्फ स्टीम हिल जाएगा, बड़े होके भी दैट अंडर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी शोन नॉट वेरी डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, बिकॉज आई हैव सीन पीपल who find it so difficult to take decisions because they have been underconfident since child. बचपन में भी अगर उनको डिसीजन लिया होगा, गलत हो गया होगा, उनको डांट पड़ गई होगी, तो लेटर ऑन दे बिकम वेरी कंजर्वेटिव। वो डिसीजंस नहीं लेते हैं, दे अवॉइड टेकिंग डिसीजंस। एंड मोर ओवर, I've also seen, people who just cut off from social circles. In fact, when I interact with, people who are of age 22, say like 27, and they say they are happy being alone. They don't want to have a lot of friends. ये जो प्रॉब्लम है, ऑफ कटिंग देमसेल्फ ऑफ, social, gatherings, or from society, or from social, networks and all, ये प्रॉब्लम भी अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से आती है। बिकॉज दे फील दैट अगर वो कुछ बोलेंगे, अगर कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, हो सकता है सामने वाले को अच्छा ना लगे,
वो उसको वापस कमेंट कर दे या उसको कुछ रूड बोल दे, so they just want to avoid it. And it's a very sad state because they have had such experiences during their childhood कि बड़े होके they're so afraid, they're literally so afraid to interact with people, to talk to people, and they become, they try to have a shell around them. उनको उसी में रहना होता है, लिमिटेड लोगों से बात करनी होती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना होता है. सो ऑल दीज थिंग्स दे डू, दे जस्ट कन्फाइन, राइट? एंड ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम चाइल्डहुड memories, because childhood memories can never be erased. They are there, not in your active memory, but subconsciously at the back of your head, they always remain there. So I always say a child should get a very healthy and good environment. बचपन से लेके 6-7 years तक एक बच्चे को बहुत ही प्यार से एक अच्छे मोटिवेटिंग फ्री इन्वायरमेंट में बड़ा करना चाहिए, जहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस ग्रो हो, जहाँ उसका सेल्फ स्टीम ग्रो हो, और लेटर ऑन जाके उसको एक बेस मिले जहाँ पर वो एक अच्छा हाई कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ स्टीम का इंडिविजुअल बन सके. सो ऑल दीज ट्रोलिंग एंड ऑल व्हाट हैपेंस, they will have less impact on a child who is very confident about himself, right? And because you cannot do anything about people, who say anything and everything to, for their own sake or for their own entertainment. आप उनका कुछ नहीं कर सकते. आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हो बचपन से, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हो, और एक पॉजिटिव माइंडसेट दे सकते हो, राइट? Positive mindset regarding their body. In fact, body shaming has become so common nowadays. So the child needs to feel confident about his physical appearance, about his dressing sense and all those things. And all those things need to be taken care from childhood. Because base अगर strong रहेगा तो आगे जाके बच्चा भी एक strong individual होके ग्रो अप करेगा, एंड लोगों के नेगेटिव कमेंट्स का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. सो this is literally what I wanted to share, because this was going in my head since last few days. In fact, I have written a blog on this. In fact, the very first blog, which is coming direct from my experience and from my heart. I love all of you to please read that blog, right? And I will also want you people to do share your stories कि कभी आपके साथ ऐसा बचपन में हुआ हो जिसकी मेमोरी आज तक आपके साथ है और वो बहुत अच्छी मेमोरी नहीं है. Because good memories obviously help us to grow in a better way, but bad memories also help us to grow and make us even stronger. So I love to hear from you people your memories of childhood, which we can share with each and every one of us, so that we learn what we have gone through and we can prevent the other people from going through all those things. So developing empathy is something which we need to start inculcating in our children and in our environment, right? So thank you so much for being so patiently listening to whatever I talked about, and please do share your experiences with me. In you can directly message me, or you can put down in the chat box below. So thank you so much, and God bless.